اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناکل کوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائی۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کے حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا۔ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے ہیں، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نے ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سنوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات۔ اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔ ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا، زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے، حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی، اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے، جنگیں بھی ہوں گی،
लेकिन चर्चे और तस्करे मौला अली शेर खुदा की तलवार के किए जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कौसर कमाना हबीब आपको खैर कसीर अता कर दी, और करेंगे नहीं कर दी, करेंगे नहीं कर दी, दे दी महबूब खैर कसीर, आपको खैर कसीर दे दी। अब आप पता क्या करें, फसल्ली लिरब्बी का, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें। इसका शुक्राना ये है कि आप नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी करें। अल्लाह ने खैर कसीर दे दी, अब शुक्राने में नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिया का हुआ अबतर, आपका दुश्मन जड़ कटा है। अबतर अरबी में उस जानवर को भी कहते हैं जिसकी दुम कटी हुई हो, आपका दुश्मन दुम कटा है। अबू जाल की औलाद मरी तो नहीं थी सारी, बल्कि अबू जाल की औलाद में तो हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बेटे थे, उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया था, हुजूर के गुलाम हो गए थे, पर कभी किसी ने कहा है मैं अबू जाल की औलाद हूँ। यजीद की कुछ सारी औलाद मर तो नहीं गई थी, कभी किसी ने कहा है मैं उसकी औलाद में से हूँ। दुश्मनों की जड़ कटती है, दुश्मनों की। उन्होंने तो कहा था कि इनकी औलाद कोई नहीं, इनका जिक्र कैसे होगा। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हर जगह तुम्हें सैयद मिलेंगे, सादात मिलेंगे। और जहां तक जिक्र की बात है, वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह फरमाते हैं हबीब हमने आपकी खातर आपके जिक्र को बुलंदियां अता फरमा दी। हर घर गली, हर हर नगर, हर हर कोने रसूल पाक का तज़किरा हो रहा है। करना क्या है, फसल्ली लिरब्बी का वन, आप नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। कुरान पाक की आयत बताती है कि फसल्ली लिरब्बी का वन, हर पहले नमाज है फिर कुर्बानी, यानी ईद वाले दिन पहले नमाज पढ़ेंगे फिर कुर्बानी करेंगे। ईद से पहले कुर्बानी क्यों नहीं कि अल्लाह ने पहले जिक्र ही नमाज का किया, कुर्बानी का जिक्र ही बाद में, पहले नमाज फिर कुर्बानी। कुर्बानी शुक्राने में करें। मेरे अजीज, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसीलिए बड़े ज़ौक़ के साथ कुर्बानी का दर्स दिया था। वजह उसकी पता क्या है, इस्लाम कहते हैं कि अमीर बंदे अकेले अकेले खुशी ना मनाओ, बल्कि गरीबों को शामिल करो खुशियों में। छोटी ईद का मौका आया तो फितराना रख दिया साथ, करो ना खुशी, तो खिलाओ गरीबों को भी, दो उनको भी। हमारे यहाँ तो फितराना नहीं, ज़कात भी अक्सर लोग रमज़ान में ही देते हैं, इसको भी साथ शामिल कर लिया गया। आपके यहाँ घर में बेटा पैदा हुआ तो कहा अकीका कर लो, रिश्तेदारों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। अगर आपने निकाह किया तो कहा वलीमा ज़रूर करना, खुशियों में दूसरों को शरीक करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा ज़रूर करना, चाहे बकरी का बच्चा ही ज़िबा कर लो, वलीमा ज़रूर करो, दोस्तों को, लोगों को शामिल करो। बड़ी ईद आ गई तो फरमाया ईद भी पढ़ो और कुर्बानी भी करो, लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करो, रिश्तेदारों को भी दो, दोस्तों को भी दो, अपनों को भी दो, और गुरबा को भी शामिल करो। हमने पता क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके, आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे जैसे दौलत ज़्यादा आई लोगों के पास, उनके खर्चे बढ़ गए, हमारे अखराजात ज़्यादा हो गए, फिर हम बंद होकर रह गए अपने आप में। गरीब भी अपनी गरीबी में बंद है, उसे भी अगर कोई चीज़ मुयस्सर आती है तो वो अकेला कब्जा करना चाहता है, माजरत के साथ, नाराज़ नहीं होना, वो भी अपनी जगह बंद है, बांट के नहीं देता। अगर गरीब भी थोड़ा थोड़ा बांटे, दाएं बाएं देखे, तो फिर तो मेरे रसूल पाक का वो फरमान भी बड़ा खूबसूरत है कि हुजूर ने फरमाया कि गोश्त पकाओ तो शोरबा ज़्यादा कर लो, चलो पड़ोसियों को भी शामिल कर लो। तो गरीब भी अगर शोरबा ज़्यादा कर ले तो वो भी इस मामले में तो आगे। अमीर ने क्या किया है, अमीर ने दोस्तियां भी अमीरों से लगा ली, ताल्लुकात भी अमीरों से बना लिए, ऐनक भी अमीरी की लगा ली, उसे नजर ही कुछ नहीं आता। आप सदकात करें, खैरात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं जब तुम सदका देते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है हर चीज से, लेकिन जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह ताला अपने दाएं दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका लेता है। अल्लाह हाथों से पाक है जो उसकी शान के लायक, अल्लाह अपने दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका ले लेता है। और फरमाया जिस तरह तुम अपने घर में बछड़ा पालते हो ना, इस तरह रब तुम्हारे सदके को पालता है, तुम्हारे सदके को अल्लाह पालता है। शारीन हदीस कहते हैं ये पला हुआ सदका मिलेगा तुम्हें क़यामत वाले दिन, और ये सदका देने से आप ताकतवर हो जाएंगे, गरीब की मदद करने से ताकतवर हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, आप जर्री हो जाएंगे, दलेर हो जाएंगे। आप छुपा के सदका करके तो देखें, रूह ताकतवर होगी, दिल ताकतवर होगा, सीना ताकतवर होगा, आपके मिजाज में रोशनी आएगी। किसी गरीब बहन भाई को दे के तो देखें तो सही, जब उसके आंसू बहते हैं तो यूं लगता है कि एक एक आंसुओं के कतरे में 1 करोड़ दुआ शामिल है। ये काम करें तो सही, पर हमें भूलता जा रहा है, भूलता जा रहा है।
गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, भूलता जा रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, ज़मीन अल्लाह ने पैदा की तो ज़मीन हिलने लगी। अल्लाह ताला ने मीखे बना के, किले बना के पहाड़ ज़मीन के अंदर लगाए, पेवस्त की। फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि शायद सबसे ताकतवर मखलूक ही पहाड़ है। अल्लाह ने लोहा पैदा कर दिया, तो पहाड़ों को गोया काट के रख दिया। फरिश्ते समझने लगे सबसे ज़्यादा ताकतवर ही लोहा है। अल्लाह ने आग पैदा कर दी, लोहा भी पिघला दिया। फरिश्ते समझने लगे शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर आग है। रब ने पानी पैदा कर दिया, आग भी बुझा के रख दी। फरिश्ते समझने लगे सबसे ताकतवर शायद ये पानी है। रब करीम ने हवा दिखाई, हवा ने पानी का रुख बदल दिया। फरिश्ते बार बार ताज्जुब कर रहे थे, तो रब करीम ने फरमाया कितना कुछ सोचोगे, मैं तुम्हें बता ही ना दूं सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। या अल्लाह बताया जाए तो फरिश्तों को मेरे रब करीम ने फरमाया इन सारी चीजों से ज्यादा ताकतवर तो मेरा वो बंदा है जो सीधे हाथ से सदका देता है और दूसरे को पता भी नहीं चलने देता। बड़ा ताकतवर है वो, बड़ा बड़ा मजबूत आदमी है वो। ईद की नमाज पढ़ने जब निकलो ना, पलट के जरा लोगों के कपड़े एक दफा देख ही लेना। जब ईद वाले दिन सुबह आप निकला करें तो जरा देख ही लिया करें किस किस का रंग क्या है, आप थोड़ा गौर ही कर लिया करें। लेकिन हम ना अपनी जातों में इतने मस्त और महव हो जाते हैं, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सा नीचे उतरें, थोड़ा सा लोगों का ख्याल करें, थोड़ा सा आप देखिए इसी वतन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गरीबी उन्हें परेशान करती है और उनकी खुददारी उन्हें आमादा करती है। वो कशकोले तलब भी नहीं फैलाते। आप खुद से तलाश करें, आप खुद से ढूंढें, आप मदद का जहन बनाएं, आप देने का इरादा करें। देखें मेरा रब बड़ा ही करीम है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो सखावत है ना, इसकी जड़ें जन्नत में है। इसने सखावत थाम ली, गोया उसने थाम लिया वो दरख्त जिसकी जड़ें जन्नत में। और ये जो कंजूसी और बखीली है ना, बखीली, इसकी जड़ें जहन्नुम में है। इसने इसको थाम लिया, उसने दोज़ख को थाम लिया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना खाना खिलाने में बड़े राजी होते थे और हुजूर तरगीब देते थे खाना खिलाने की। अगर ये फिक्र जो हुजूर ने बयान की, ये फिक्र हमारे मिजाज का हिस्सा बने तो देखिए किस तरह बात आगे बढ़ती है। असहाबे सुफ़ा बैठे, उन्होंने खाना खाना है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जिसके पास 2 लोगों का खाना है ना वो 3 को साथ ले जाए, और जिसके पास 3 का खाना है वो 4 को साथ ले जाए, जिसके पास 4 का खाना है वो 6 को साथ ले जाए। फरमाया 2 का खाना है तो 3 को वो पूरा आएगा। हमारे यहाँ अगर आदादो शुमार इकट्ठे किए जाए ना तो हमारे यहाँ जितना खाना ज़ाया होता है शादी पे, ब्याह पे, वलीमे पे, अकीके पे, दावत पे, वो ज़ाया होने वाला खाना अगर जमा कर दिया जाए तो कितने गरीब लोग हैं जिन बेचारों को हम अच्छे खाने में शरीक कर सकते हैं और वो बेहतरीन ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कि फरमाया 2 का 3 खा लो, 3 का 4 खा लो, 4 का 6 लोग खा सकते हैं। इस सोच को जो सोच रसूल पाक ने अता फरमाई, तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों को खाना मुयस्सर आता है। हमने अब क्या किया है, हमने दावतें बनाई हैं तो अमीरों अमीरों की, तोहफे देने हैं तो दावतें भी अमीरों अमीरों की हैं, और हमारा उठना बैठना भी। तो हर चीज़ में हमने लेवल बदल लिया है। मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि वापस लौटें, आप उन जगहों पे आएँ जो जगह हमारी असल है, जो हमारा बुनियादी काम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दावत मलऊन है, लानती है, जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को ना बुलाया जाए। आपने झिड़की कोई नहीं देनी। जब कोई दरवाजे पे गोश्त लेने आ जाए, खाना लेने आ जाए, किसी मौके पर कुछ लेने आ जाए तो झिड़कना नहीं। आपका लहजा ठीक हो, कपड़ों की दावत ना करें, आप गाड़ियों की दावत ना करें, इंसानों से प्यार करें, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। आप देखें कि गुरबा के साथ जब आपका रवैया ठीक हो जाएगा तो अल्लाह ताला आपको बड़े बड़े नसीबों से, बड़े बड़े रंगों से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अबू जहल ने, अबू लहब ने मुतालबा किया था कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, पर जब भी आते हैं यहाँ बिलाल हबशी बैठे होते हैं, सुहैब रूमी बैठे होते हैं,
ये गरीब लोग बैठे होते हैं, तो हमारे स्टेटस के लोग बैठेंगे तो फिर हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। रब रसूल का फैसला क्या आया, और मैं तुमने बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो ना बैठो। बिलाल यही बैठे रहेंगे, सुहैब यही बैठे रहेंगे, अम्मार बिन यासर यही बैठेंगे, सलमान फारसी यही बैठेंगे, गुरबा इसी मकाम पे रहेंगे, इनको उठाया नहीं जाए। तो आप ये ईद का जो मौका है, छोटी हो या बड़ी हो, इसके बाद जितने मौके हैं अपने गुरबा को ना भूलें। और आपको पता है रिश्तेदार से सिला रहमी करें तो डबल सवाब मिलता है। अगर रिश्तेदार गरीब हो तो एक गरीब को देने का, एक रिश्ता निभाने का डबल अजर मिलता है। हमारे अपनों में, बहन भाइयों में, क्योंकि छोटी छोटी बातों से नाराज़गी हो जाती है और वो छोटी छोटी बातें फिर इख्तलाफ का सबब बन जाती हैं। उन छोटी बातों से हम एक अकीदे का, नज़रिए का किसी जगह इख्तलाफ हो तो बात और है, लेकिन छोटे छोटे वैसे मसाइल घरों में हो जाते हैं तो हम उन मसाइल की बुनियाद पर इतने दूर हो जाते, इतना वो बदअकीदा हुआ, ना दीन छोड़ गया, ना कोई और मसला हुआ, लेकिन हमने इतनी दूरियां कर ली कि बहुत सारे लोग हमारे दस्तरखान से खा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जेब से पल रहे हैं, पर हमारे अपने हमसे दूर हो गए, उनको हम करीब नहीं करते। तो भाई जिससे भी आपका लेन देन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो कमज़ोरी हो ही जाएगी। अपनों को अपनों से दूर न करें, उन्हें दे, उन्हें नवाजे, उनका ख्याल करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है रिस्क भी ज़्यादा हो, उम्र भी लंबी हो, वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। ईद के मौके पे जिन लोगों की हमें बड़ी ज़रूरत होती है ना, उनमें एक अहम किरदार कसाई का है। सिर्फ कसाई को नहीं जल्दी होती, हमें भी जल्दी होती है कि तू आ भी जल्दी और इसको बना भी जल्दी। तो वो क्या कर रहा होता है, वो हमारा गोश्त भी बना रहा होता है और साथ साथ फ़ोन भी सुन रहा होता है, कह रहा होता है 20 मिनट में आया, 40 मिनट में आया। एक तो झूठ पे झूठ माज़अल्लाह ताला, और दूसरा उस जल्दी में नुकसान क्या है, उस जल्दी में नुकसान जानवर का है। जल्दी से उसकी खाल उतार देंगे, बहुत सारी जगहों पे जानवर ठंडा ही नहीं होता है पूरी तरह, और फटाफट करते हैं लोग। ये सिर्फ कसाई का मसला नहीं है, हमारा भी मसला है, हमें भी जल्दी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारा रब तुम्हें हर मामले में एहसान करने का हुक्म देता है। फरमाया जानवर को अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे आराम पहुंचाओ, उसको सलीके के साथ। एक शख्स ने बकरी के ऊपर अपना पैर रखा हुआ था और साथ ही छुरी तेज कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे 2 मौतें देना चाहते हो, 2 दफा मारना चाहते हो इस बकरी को, यानी तुम पहले छुरी को तेज नहीं कर सकते थे। अच्छे तरीके से उसको आप, और मेहरबानी फरमाएं अनाड़ी लोग ये काम न करें, वो जानवरों को तकलीफ देते हैं, जानवर अजियत में आ जाते हैं। बिलखुसूस मैंने चंद मकामात पे ऊँट को निहार करने वाले लोगों को देखा है, उन बड़ी ज़्यादती की, जानवर तकलीफ़ में आते हैं, बड़ी बड़ी देर तकलीफ़ में रहते हैं। आप थोड़ा सा, इस्लाम ने 3 दिन रखे हैं, पूरे 3 दिन रखे हैं। तो किस लिए रखे हैं कि आप आराम के साथ, सुकून के साथ अपने जानवर को ज़िबा करें, तो जल्दी का आएगी। अल्लाह तबारक व तआला जो जो कुर्बानी करने जा रहे हैं उनकी कबूल फरमाए, और जो रह गए इस साल, अल्लाह अगले साल उन्हें बड़ी बड़ी तौफीक अता फरमाए।